Yes, hello dear students. Now I am starting with the second numerical, which is based on the assumptions of factor analysis only. So we have done the first numerical. The second numerical is also the same, but in this numerical, there are certain questions which are based on the basis of assumption 2 of factor analysis. So the first assumption पे based numericals है, वो आप लोगों ने कर लिया है. So this is what is the first numerical. So ये table will be given to you. This is a factor matrix and इस factor matrix में tests दिए गए हैं 4, जिसमें test number 1, 2, 3 and this is the criterion test. Factors are 5 factors. ये इन tests की reliability भी given है. So this is the reliabilities which are given of these tests. So test number 1 की reliability is 0.74, test 2 की 0.66, test 3 की 0.90 and 0.87 is the reliability of the criterion test. ये factor loadings given है हर एक factor की test की हर एक factor की loading on this test number 1, 2, 3 and so on. So what is the first part of this numerical? So this is it, compute commonality for all the tests. तो जो पिछला numerical था हमारा उसमें भी हमने commonality calculate की थी. तो इस तरीके से आप ये जो factor matrix से draw कर सकते हैं. जो red pen पे यहाँ पे लिखा हुआ है the commonality, that is the h square, specific variance, this is the s square और ये आपका uniqueness, that is u square. तो ये values हम खुद calculate करके fill in करेंगे. So we have done this. तो यहाँ पे commonality किस तरीके से calculate करनी है हमने पहले भी first numerical में किया था. So this is the way through which the commonality of these tests can be calculated. कि उस test पे जितनी भी factor loadings हैं, यहाँ पर test number 1 की 5 factor loadings हैं. So 0.4 square plus 0.4 square plus 0.3 square plus 0.50 square plus 0 square. So it will give you a commonality of 0.66 की common variance जो है test number 1 की 0.66 है. तो आप यहाँ पे टेबल पे वो वैल्यू फिल इन कर देंगे. सिमिलरली टेस्ट 2 की आप कैलकुलेट करेंगे. तो टेस्ट 2 की जितनी भी फैक्टर लोडिंग्स हैं ऑन दीज 5 फैक्टर्स उनको आप स्क्वायर करेंगे, sum up करेंगे. That will give you the commonality of test number 2, that is coming out to be 0.56. Likewise test 3 की and criterion test की commonality has been calculated. Specific variance, next question specific variance है. So I'll just read out the question for you. So this is the B part of this question. So which test has the largest specific variance? So which test has the largest specific variance? उसको जानने के लिए आपको हर एक टेस्ट की स्पेसिफिक वेरिएंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो स्पेसिफिक वेरिएंस का ये फॉर्मूला गिवन है. तो देयर वेरिएंस एक और फॉर्मूला भी है. तो हमारे पास रिलायबिलिटी की भी वैल्यू है, कॉमनैलिटी की भी वैल्यू है. तो इस तरीके से भी हम स्पेसिफिक वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्पेसिफिक वेरिएंस इज इक्वल टू रिलायबिलिटी ऑफ दैट टेस्ट minus the commonality of that test. So test number 1 की reliability कितनी है? 0.74 minus its commonality, that is 0.66. So it is giving out, it comes out to be 0.08. तो test number 1 की जो specific variance है वो 0.0 है. तो आप यहाँ पर उसको fill in कर सकते हैं ये value को. Similarly test number 2, test number 3 and test number C, जो क्राइटेरियन टेस्ट है उनकी भी आप जो स्पेसिफिक वेरिएंस है कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टेस्ट नंबर 2 की जो रिलायबिलिटी है, रिलायबल वेरिएंस है, दैट इज 0.66 माइनस इट्स कॉमनैलिटी, दैट इज 0.56. तो इट कम्स आउट टू बी 0.50. तो बाकी जो टेस्ट है उनके 0.05 एंड 0.03 आ रही है. सो द क्वेश्चन वाज किस टेस्ट की लार्जेस्ट स्पेसिफिक वेरिएंस है? तो ऑब्वियसली 0.10 इज द लार्जेस्ट स्पेसिफिक वेरिएंस. कौन से टेस्ट की है? टेस्ट नंबर 2 की लार्जेस्ट स्पेसिफिक वेरिएंस है. तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि टेस्ट 2 इज हैविंग द लार्जेस्ट स्पेसिफिक वेरिएंस. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हर एक टेस्ट की आपने यूनिक वेरिएंस कैलकुलेट करनी है. तो यूनिक वेरिएंस को हम लिखते हैं यू स्क्वायर. सो 1 माइनस द कॉमन वेरिएंस, दैट इज द यूनिकनेस. सो हर एक टेस्ट की कॉमन वेरिएंस आपके पास है. तो उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास उन सभी टेस्ट्स की यूनिक वेरिएंस या यूनिकनेस की वैल्यू आ जाएगी. सो टेस्ट नंबर 1 की यूनिकनेस है 0.34, टेस्ट 2 की 0.44, टेस्ट 3 की 0.15 एंड क्राइटेरियन टेस्ट की 0.16. नेक्स्ट आप ईगन वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने ईगन वैल्यूज आपको पहले भी बताया था इन लास्ट न्यूमेरिकल. ईगन वैल्यूज एंड परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करनी है. सो यू कैन डू द कैलकुलेशन सीइंग माय प्रीवियस रिकॉर्डिंग. सो अब मैं आती हूँ तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल दिस.
तो सेकेंड पार्ट का ए पार्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द टेबल ऑफ कोरिलेशंस फॉर द 4 वेरिएबल्स। क्लियर, टेबल ऑफ कोरिलेशंस फॉर द 4 वेरिएबल्स। तो जो सेकेंड अजम्पशन थी, आई जस्ट शो यू द सेकेंड अजम्पशन ऑफ दिस। सो दिस इज द सेकेंड अजम्पशन। This is the second assumption कि correlation between two variables that is J and K, उसको कैसे कैलकुलेट करना है कि loading of factor A on both the tests on both the variables J and K plus factor B की दोनों टेस्ट पे कितनी लोडिंग्स हैं और भी जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी दोनों टेस्ट पे कितनी लोडिंग्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, देन उसको ऐड करना है, रिजल्टिंग वैल्यू विल गिव यू द कोरिलेशन बिटवीन दिस। सो विल जस्ट डू द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ दिस। Okay. So I have just written this numerical over here. So अब हम इसकी जो reliable correlation है, so correlation between J and K, ठीक है? So this was the assumption. या AJ2 भी कर सकते हैं इसको। ओके, सो रिलायबिलिटी। अब यहाँ पर हमारे पास 4 टेस्ट्स हैं, टेस्ट नंबर 1, 2, 3 एंड द क्राइटेरियन टेस्ट। सो पहले हम सारे टेस्ट्स की आपस में हम इंटर कोरिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम 1 एंड 2 की पहले कैलकुलेट करते हैं। सो 1 एंड 2 कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2। तो यहाँ पर क्या है, टेस्ट नंबर फैक्टर नंबर 1 की इन टेस्ट्स पे क्या फैक्टर लोडिंग्स हैं। सो टेस्ट नंबर 1 की फैक्टर नंबर 1 की टेस्ट नंबर 1 पे फैक्टर लोडिंग कितनी है, 0.40। सो दिस इज 0.40 into 0.60। सो दिस इज व्हाट दिस assumption is saying कि अगर कोई भी correlations आपने किन्हीं भी 2 टेस्ट्स की निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे कि फैक्टर नंबर 1 की उन टेस्ट्स में जो भी फैक्टर लोडिंग्स है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल एड इट विद सेकेंड फैक्टर की उन टेस्ट्स पे कितनी कोरिलेशन कितनी फैक्टर लोडिंग है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो फैक्टर नंबर 2 की टेस्ट नंबर 1 पे कितनी लोडिंग है, इट इज 0.4, मैं 0 नहीं लिख रही अब यहाँ पर, दिस इज 0.4 into 0.2। सिमिलरली फैक्टर नंबर 3 की कितनी है, टेस्ट नंबर 1 पे 0.30 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर नंबर 3 की टेस्ट नंबर 2 पे फैक्टर लोडिंग इज 0, तो into 0 प्लस 0.50 into 0.40 प्लस फैक्टर नंबर 5 की दोनों टेस्ट पे 0 फैक्टर लोडिंग्स हैं, तो 0 into 0। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.52। सो दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2। सिमिलरली आप ये कोरिलेशन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 1 and 3 का कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 3। सारे पॉसिबल जो इंटर कोरिलेशन है टेस्ट के हम सभी कैलकुलेट करेंगे। देन 1 का विद द क्राइटेरियन, 1 विद C। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 विद 3 एंड कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड द क्राइटेरियन वेरिएबल। देन एक रह जाएगा, दैट इज कोरिलेशन ऑफ टेस्ट नंबर 3 विद द क्राइटेरियन टेस्ट। तो मैं एक कैलकुलेट करके आप दिखा देती हूँ, एक और कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट नंबर 1 एंड 3। सो क्या कौन सी वैल्यूज आएंगी, फैक्टर नंबर 1 की टेस्ट 1 पे कितनी फैक्टर लोडिंग है, इट इज 0.40 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर नंबर 1 की टेस्ट नंबर 3 पे कितनी है, 0.3 प्लस 0.40 into 0.60। तो आप सारी ये कैलकुलेट करके टिल हेयर आप 0 into 0.60 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इट इज 0.46। यू कैन डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन। टेस्ट नंबर 1 की क्राइटेरियन टेस्ट के साथ, सो 0.40 into 0.10 प्लस 0.40 into 0.70
तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसी तरीके से आप सारी इंटरकोरिलेशंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट क्वेश्चन है दैट इज, तो वी आर डन विद दिस। So compute the table of correlations for the 4 variables, ये हमने कर लिया है। Which test is most valid for the criterion? Which test is most valid for the criterion? अब हमने सारे टेस्ट्स की इंटरकोरिलेशंस निकाल ली है। Now उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा टेस्ट इज मोस्ट वैलिड विद द क्राइटेरियन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जितनी भी हमने कोरिलेशंस निकाली है, क्राइटेरियन के साथ कितनी कोरिलेशंस आई हैं। एक तो 1C, देन 2C एंड 3C, ये क्राइटेरियन के साथ कोरिलेशंस आई हैं। ये तीनों की आप वैल्यूज देखें। फर्स्ट टेस्ट के साथ जो कोरिलेशन क्राइटेरियन के साथ आई है दैट इज 0.41। सेकेंड टेस्ट के साथ कितनी आई है, R2C, कोरिलेशन बिटवीन सेकेंड टेस्ट एंड द क्राइटेरियन, इट इज 0.20। एंड थर्ड के साथ आई है 0.75। सो दिस इज द लार्जेस्ट, 0.75 इज द लार्जेस्ट कोरिलेशन। तो सी टेस्ट 3 इज मोस्ट वैलिड फॉर द क्राइटेरियन, कि क्राइटेरियन के साथ टेस्ट नंबर 3 की सबसे ज्यादा कोरिलेशन आई है, सो दैट इज मोस्ट वैलिड फॉर द क्राइटेरियन। सो इट्स कोरिलेशन विद द क्राइटेरियन इज कमिंग आउट टू बी 0.75, which is more than the other correlation coefficients between the tests and the criterion. That is first test number 1 की क्राइटेरियन के साथ कितनी कोरिलेशन है एंड सेकंड की क्राइटेरियन के साथ कितनी कोरिलेशन है, वो 0.75 से कम है। सो दैट इज वाई टेस्ट नंबर 3 की जो कोरिलेशन है वो ज्यादा है एंड इट इज मोस्ट वैलिड फॉर द क्राइटेरियन। नाउ व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? Here it is, C part. So if test were to be altered, if test 2 were to be altered to increase its validity for the criterion, on which factor would it be important to increase its loading? Okay, now they are asking कि अगर टेस्ट 2 पे हमने टेस्ट 2 की क्राइटेरियन के साथ अगर वैलिडिटी इंक्रीज हम अगर करना चाहते हैं तो कौन से फैक्टर पर हम फैक्टर लोडिंग इंक्रीज करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखें टेस्ट 2 की ये वाली देखें, टेस्ट 2 की अगर वैलिडिटी इंक्रीज करनी है तो कौन से फैक्टर के पे लोडिंग हम इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट फैक्टर पे लोडिंग 0.65 इंटू 0.1, 0.22 इंटू 0.7, 0 इंटू 0.3, ये 0 पे इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 0 कोई भी इंक्रीज करोगे तो वो 0 ही रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो है ये सेकंड फैक्टर की आ रही है, सो दिस 0.2 इंटू 0.7, बाकियों की कम है। 0.6 इंटू 0.1, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो इस पे अगर हम इंक्रीज करेंगे, सेकंड फैक्टर पे इंक्रीज करेंगे तो फैक्टर लोडिंग, तो जो वैलिडिटी है ऑफ द सेकंड टेस्ट या कोरिलेशन है सेकंड टेस्ट की क्राइटेरियन के साथ इंक्रीज हो सकती है। क्लियर? सो ऑन फैक्टर नंबर 2 नाउ, so factor 2 is the answer. Now now the last part of this numerical is on which factor might it be most desirable to reduce its loading. तो कौन से फैक्टर्स पर लोडिंग को हम डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि सेकंड टेस्ट की क्राइटेरियन के साथ कोरिलेशन अच्छी आए। तो ऑब्वियसली इनकी डिक्रीज कर दें, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। सो वी कैन डिक्रीज इट बिकॉज कोई फायदा नहीं होगा अगर इनके भी हम फैक्टर लोडिंग्स अगर इंक्रीज करें, बिकॉज एक की 0 फैक्टर लोडिंग है तो 0 के साथ कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा। क्लियर? सो ऑन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है? फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 4 एंड फैक्टर नंबर 5। सो बिकॉज सम ऑफ इट्स फैक्टर लोडिंग्स आर 0। सो दिस इज व्हाट is the kind of numerical that can come which is based on assumption number 2. So I hope आपको दोनों assumptions के ऊपर जो based numericals हैं वो clear है।